بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، گھر سے اپنے کام سبب کے لیے باہر نکلے، اس کو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اس بندے کی اس بندی کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر کوئی صاحب 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دے گا، اس بندے کی اس بندی کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر کوئی صاحب 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ پھر خود لے لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پھر خود فرمائے گا۔ آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے انشاءاللہ، اور ہمارا مدینہ منورہ کی پاک اور مقدس مقامات کی زیارتوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سفر ہے مدینہ منورہ کی پاک اور مقدس مقامات کی زیارت کا، جو ہماری پہلی زیارت ہے کہ جسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ عالمی اسلام کا جو دین اسلام کا پہلا بڑا غزوہ ہوا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس میں ہمارے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان کو جمعہ، جون جولائی کا مہینہ، فروری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جس میں ہمارے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ عالمی اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ غزوہ شہداء احد ہوا سن 3 ہجری میں، جس میں ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ عالمی اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ غزوہ خندق ہوا، جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، جسے فتح کا میدان کہا جاتا ہے، جسے جبل سیلا کا پہاڑ کہا جاتا ہے، جسے جبل سیلا کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ چاروں طرف سے محفوظ تھا، ادھر سے محفوظ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ، کافرین مکہ نے پروگرام بنا لیا کہ جاتے جاتے مدینہ منورہ کے اوپر اس جگہ سے حملہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کر کے سلام مشورہ کیا۔ اسی روایت میں 3000 کا لشکر تھا، اسی میں 4000 کا لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کر کے سلام مشورہ کیا۔ کسی نے کسی طرح کا مشورہ دیا، کسی نے کسی طرح کا مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، ان کی عمر تقریباً 250 پونے 300 سال کے قریب تھی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی فارس کے اندر جنگ لڑتے ہیں، خندق کی کھدائی کر کے جنگ لڑتے ہیں، لمبی جتنی مرضی ہو، 5 میٹر چوڑی، 5 میٹر گہری، اور اس کے اندر ہم آگ لگا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے حصے خندق کی کھدائی لگا دی۔ سب صحابہ کے حصے 5 میٹر لمبا، 5 میٹر چوڑا، 5 میٹر گہرا کھدائی کا حصہ گیا۔ اسی طرح 2 جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی 5 میٹر لمبا، 5 میٹر چوڑا اور 5 میٹر گہرا کھدائی کا حصہ گیا۔ کھدائی کرتے کرتے 3 سے 4 دن کی بھوک اور پیاس آ گئی، جسے فاقہ کہا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ آ گئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی ہے، کچھ دیجیے۔ 2 جہاں کے سردار آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے زمین سے 2 پتھر اٹھائے، اپنے نبوت والے پیٹ کے اوپر بھوک اور پیاس کی شدت سے 2 پتھر باندھ دیے۔
पास में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु का घर था। उन्होंने देखा उनकी तो चीखें निकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो फरमाना हाजी साहब, ये आप लोगों के उल्टे हाथ, ये आप लोगों के उल्टे हाथ पर ये पीले कलर की एक छोटी सी इमारत नजर आ रही है। उसके साथ ही पीले रंग वाली छोटी सी मस्जिद, काले पत्थरों वाली कच्ची मिट्टी से बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद उसके साथ ही ऊपर। इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दरमियान खैमा था। इसे मस्जिद फतह कहा जाता है। उसके साथ ही टावर लगा हुआ है। टावर के साथ ही एक कब्रनुमा मस्जिद बनी नजर आ रही है, काले पत्थरों वाली नीचे जमीन के ऊपर। उस जगह पर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था, जिन्होंने ये जंग की खुदाई का मशवरा दिया था। उसके साथ ही सफेद रंग का एक मीनार नजर आ रहा है, जिस जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। उसके साथ ही दूसरा मीनार नजर आ रहा व्हाइट कलर का, उस जगह पर हजरत सुमानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। उसके साथ ही वो पहाड़ के नीचे एक छोटी सी मस्जिद बनी नजर आ रही है, जिस जगह पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। उनके साथ ही हजरत फातिमा तो ज़हरा का खैमा था। सड़क के दरमियान में एक और खैमा था, जिस खैमे का नाम था हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था, जिन्हें हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहा जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हर जंग में सबसे आगे हुआ करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हर जंग में सबसे आगे हुआ करते थे। अपने म्यान से तलवार निकालते, तलवार हवा में लहराते लहराते कहते, जिसने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो मेरे सामने आ जाए, जिसने अपनी औरतों को बेवा करवाना हो मेरे सामने आ जाए। मुशरिकीन मक्का, काफिर मक्का खौफ के मारे ये बात सुनकर डर कर भाग गए करते थे। ये जो पहाड़ के ऊपर घर बने नजर आ रहे हैं, इस जगह पर सल्तनत उस्मानिया हुकूमत थी, तुर्की की हुकूमत थी। तुर्की वालों ने इस जगह पर गार्ड तैनात किए थे, तीर अंदाज तैनात किए थे। बाद में इस पहाड़ का नाम है जबल सिला का पहाड़। इस पहाड़ के पीछे मस्जिद नबवी है और आप लोगों का होटल है। सबा अरबी का लफ्ज़ है, सबा का मानी है सात ही मसाजिद एक जगह पर इकट्ठे हैं। पहला खैमा दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद फतह। दूसरा खैमा हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का, जिन्होंने ये जंग की खुदाई का मशवरा दिया था, जिनके ऊपर तकरीबन 250 पौने 300 साल के करीब थे। तीसरा खैमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का। चौथा खैमा हजरत सुमानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का। पांचवा खैमा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। छठवां खैमा हजरत फातिमा तो ज़हरा का। सातवां खैमा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। इसीलिए इसे सबा मसाजिद कहा जाता है। ग़ज़वा खंदक इसलिए कहा जाता है कि इस जगह पर खंदक की खुदाई की गई थी। ग़ज़वा अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए थे। अल्लाह ताला के हुक्म से तेज अंधेरी आंधी तूफान आ गया था। मुशरिकीन मक्का, काफिरान मक्का के खैमे उलट पलट गए थे, उनके घोड़े आपस में टकरा गए थे, उनकी आंखों में मट्टियां पड़ गई थी और उनके हांडियां जो उल्ट पलट गई थी। और इसीलिए इसे फतह का मैदान भी कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर बैठकर फतह की दुआ मांगी थी। तो सहाबा आ गए, आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो और भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ कीजिए। दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे जमीन से दो पत्थर उठाए, अपने नबूवत वाले पेड़ के ऊपर भूख और प्यास की शिद्दत से दो पत्थर बांध दिए। सहाबा ने भी देखकर अपने पेटों के ऊपर पत्थर बांधने शुरू कर दिए। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया, एक बड़ा चट्टान आ गया, वो किसी से टूटता नहीं था। सहाबा आ गए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया है, एक बड़ा चट्टान आ गया है, ये किसी से टूटता नहीं है, कुछ कीजिए। दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छनी हथौड़ा पकड़ के लेकर आओ, खुदाल पकड़ के लेकर आओ। सहाबा गए, जाकर छनी हथौड़ा पकड़ के लेकर आए, खुदाल पकड़ के लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी तलवार उस पहाड़ के ऊपर मारी। अल्लाह ताला के हुक्म से वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। फिर पहाड़ के आगे कुछ सहाबा खंदक की खुदाई करते थे, वो आगे आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी है, भूख और प्यास की शिद्दत से हमारी तो हालत पतली होती जा रही है, कुछ
कुछ कीजिए। दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत वाले पेट से कुर्ता कमीज ऊपर उठाया तो नबूवत वाले पेट के ऊपर भूख और प्यास की शिद्दत से दो पत्थर बांधे उठे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने देखा कि तो चिल्लाए निकल गई, दौड़े दौड़े गए, भागे भागे गए, अपने घर पहुंचे, अपनी बीवी से पूछने लगे हमारे घर में कुछ खाने के लिए मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की बीवी कहने लगी हमारे घर में 2 से 2.5 किलो जूट का आटा और एक छोटा सा बकरी का बच्चा मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को पकड़ा, नीचे जमीन को पलटाया, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, अपनी बीवी को दे दिया तुम इसका सालन तैयार करो, जो आटा पड़ा उसकी दूध पर रोटियां बनाओ, मैं जाता हूँ जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत देकर आता हूँ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह दौड़े दौड़े गए, भागे भागे गए, जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में 8 से 10 लोगों का खाना मौजूद है, 8 से 10 लोग आकर खाना तनावल कर लीजिए। पर दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खंदक खोदने वालों में ऐलान कर दो ऐ खंदक खोदने वालों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने हमारी दावत की है, आज उनके घर खाना तनावल करने के लिए चलना है। जब सहाबा ने ये बात सुनी सहाबा खुश हो गए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए। इंशाल्लाह तवज्जो फरमाएं, इस वाक़े को इधर से शुरू करेंगे, तवज्जो फरमाएं। ये आप लोगों के उल्टे हाथ पर सड़क के किनारे की एक वाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये लोहे की चादरें, काली दीवार लगी हुई है, लोहे की चादरें हैं। मदरसा कसवातुल आहलिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का खानदान इस जगह पर रहा करता था। छोटी छोटी बच्चियों ने तब बजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जगह पर इस्तकबाल किया था। ये आप लोगों के उल्टे हाथ में ये जो काली दीवार नजर आ रही है, मदरसा नजर आ रहा है, बड़ी बिल्डिंग के पीछे ये सारा मदरसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का खानदान इस जगह पर रहा करता था। छोटी छोटी बच्चियों ने तब बजाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जगह पर इस्तकबाल किया था। काला अल बदरुल के नाम से इस जगह पर नात पड़ी गई थी। इंशाल्लाह इस वाक़े को इधर से शुरू करेंगे। अगली जो हमारी ज़ियारत आ रही है आलमी इस्लाम की, दीन इस्लाम की तकवे की बुनियाद पर बना दी गई मस्जिद, जो मस्जिद नबवी से भी पहले तमीर हुई, जिसकी पहला पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से रखा। बाद में दीगर सहाबा ने मिलकर तैयार की। जब मिलकर तैयार की तो फिर ये मस्जिद कुबा तैयार हो गई। जब मस्जिद कुबा तैयार हो गई तो फिर पूरे मदीना मुनव्वरा वाले आ गए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वाले नेकियों में हमसे आगे बढ़ जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा है, अल्लाह ताला का घर है, रोजाना तवाफ कर सकते हैं, सफा मरवा की दौड़ लगाएंगे, सर के बाल करवाएंगे, उनका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। हमारे पास तो इतना मालो सर दौलत नहीं है कि हम इधर से रोजाना मक्का मुकर्रमा का सफर करें, तवाफ करें, सफा मरवा की दौड़ गए, सर के बाल करवाएं, हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर से निकलो, वजू बनाओ, वजू बनाकर आकर मेरी मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद कुबा की अदा करो और एक मकबूल उम्रे का सवाब ले जाओ। आओ और ले जाओ। जिस तरह ये गाड़ी आप लोगों का इंतजार कर रही थी या आप गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी आई, आप लोग बैठे और गाड़ी चल पड़ी। इसी तरह मस्जिद कुबा भी आप लोगों का इंतजार कर रही है, आओ और ले जाओ। इधर नियत क्या करनी है? 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद कुबा। अगर कोई साहब मुझे अपराय मस्जिद के 2 नफल अदा करने हैं, 2 नफल शुक्राने की अदा करने, 4 नफल अदा करने हैं और गाड़ी के अंदर तशरीफ लेना है साहब, ये सामने चले जाएंगे। 7 नंबर और 8 नंबर लेडीज का गेट है और उसके आगे जो गेट है वो जेंट्स का गेट है। नियत क्या करी? 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद कुबा। अगर कोई साहब मुझे अपराय मस्जिद के 2 नफल अदा करना, 2 नफल शुक्राने की अदा करना, 4 नफल अदा करना और गाड़ी के अंदर तशरीफ लेना हाजी साहब, पूरा 20 से 25 मिनट का वक्त दिया जाएगा।